the word Islam is peace. This signifies that one can achieve real peace of body and of mind only through submission and obedience to Allah. Such a life of obedience brings peace of the heart and establishes real peace in society at large. The basic Islam concept as is the whole universe was created by Allah, and who is the Lord and the sovereign of the universe was He alone substance. He created man and appointed for each human brings a fixed period of life, that he is the sun upon the earth. Allah has initiated a Jazakallah khair. اب میں عبد الواسع کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کر کے اردو تقریر پیش کرے. عبد الواسع. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم صدر انجمن، اساتذہ اکرام اور تمامی حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سالانہ انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے تعلیم کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی اتاری اس کا تعلق علم سے ہے. اس سے اندازہ یہ ہوا کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا. پر یعنی علم حاصل کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تراش کر. جناب صدر، تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا، کسی بات کا ادراک ہونا. کیونکہ تعلیم کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کا کھوج لگاتا ہے. زمین کے سینے سے ماں دنیا تلاش کر سکتا ہے. پانی کی گہرائیوں سے یہ جواہرات کا رسائی حاصل کر سکتا ہے. پانی اور سورج کی سوائیوں سے توانائی کا حصول تعلیمی ملت ہے. اسلام کے شہدائیوں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے زینے کا طریقہ. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر گود تک علم حاصل کرو. پھر اور ایک جگہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور پر فرض ہے. محترم سامعین کرام، تعلیم کا حصول نہ صرف کامیابی کا ضامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پر اعتماد بنانے اور نکھارنے میں بھی علم کا اہم رول ہے.
तालीम बुनियादी तौर पर किसी भी कौम और मुआशरे का कीमती असासा होती है। इस्लामी भाइयों, इसी इल्म की बदौलत अल्लाह ने इंसान को शबल मखलूकात ठहराया। आसमानी शरीफों से लेकर गारे हिरा तक, उस आसमानी शरीफों से लेकर कुरान पाक तक, गारे हिरा से लेकर वो एक दूर की तजल्ली तक और पत्थरों की दुनिया से लेकर बुलंद वाला अमारतों तक, घड़ी की सुइयों से लेकर हवाओं में उड़ान तक और जमीन और बहाव से लेकर खला के सफर तक इल्म और तालीम की सदा पुकार पुकार कर कह रही है कि तालीम सिखाती है जिंदगी बसर करने का तरीका। बिरादरान इस्लाम, तालीम इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर निहायत अहम है। तालीम हर कौम की तरक्की की बुनियाद होती है, जो कौम का मुआशरती इस्तेकाम और काबिलियत देती है। तालीम पैदावार इस्तिलाहात और हुनरमंद कामों में इजाफा करती है। किसी भी मुल्क की तिजारत और पैदावारी तरक्की का इन्हिसार पर होता है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। वाक़िअत दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके बाद मोहम्मद नबील को दावत देता हूँ, वो आए और एक इंग्लिश स्पीच। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। Respected teachers, guests, guardians, and my brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me, Muhammad Nabil, I study in grade 2 in Masana Roda Rampur Tata. I am 7 years old. On this beautiful day, I am going to share a few things about the Quran. Almighty Allah said in the Quran, in chapter number 2, verse number 1, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. It means this is the book of our faith, there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. The Prophet gave us miracle in Quran. It is a message from Allah's divinity. This message was given to the Prophet in the global of period, spanning approximately 23 years. This message was given to the Prophet in person over a period spanning approximately 23 years. The Muhammad Sallallahu was 40 years old when the Quran began to reflect to him and 63 when the Quran revelation completed. Every Muslim should have a strong concern Quran by building strong reaction with it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जजाकल्लाह भाइ मोहम्मद नबिललाई उनले इङ्ग्लिसमा आफ्नो छोटो स्पिच राखेर यहाँबाट बिदा भइसकेका छन्। कारणवश सञ्चालक हाफिज मस्कुर अहमद साहबले माइक्रोफोन मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अबको कार्यक्रम म अगाडि बढाउँदैछु र यसै क्रममा म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि रोजी खातुन क्लास 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे भाई बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ। उसका उन्वान है नमाज। नमाज दिन का सुकून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने पूरे दिन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ दी उसने पूरे दिन को ढा दिया। नमाज हमें अल्लाह का फरमाबरदार बनाती है। जो नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह का फरमाबरदार नहीं बन सकते।
सकते। मुसलमान और काफिर में सिर्फ नमाज के फर्क है। क़यामत में सबसे पहले नमाजी के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे नेकियों के बदले मिलेंगे, वरना सारे भले काम नष्ट कर दिए जाएंगे। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। कुर्रितु ऐनी फी सलाती, मेरी आंखों की ठंडक की नमाज है। नमाज हम लोगों की मेराज है। मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया था। नमाज में हम भी अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अपने रब से बातें करते हैं। नमाज हमें बुराई और बेहया के कामों से बचाती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज भी हमें बुरी बातों से बचाती है। यही हमें नेक बनाती और हमारी भूल चूक माफ कराती है। इसके जरिए से दीन दुनिया के सारे भलाइयां समेट सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अजान की आवाज सुन के मस्जिद के तरफ ना जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी चाहता है कि उनके घरों में जाकर आग लगा दूं, मगर सोचते हैं कि उसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे और कभी कभी औरतों की नमाज माफ हो जाती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते। जरा गौर करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितना प्यार करते थे, मगर नमाज के लिए उन्हें मारने पीटने का भी हुक्म दिए है। जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहना चाहिए। जब 10 साल के हो जाए तो वो नमाज ना पढ़े तो उन्हें मारने पीटने का भी हुक्म दिए है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह बहिनी रोजी खातुन उनले नमाजको अहमियत, नमाजको महत्त्वको बारेमा आफ्नो छोटो तकलिफ पेश गरेर यहाँबाट बिदा भइसकेकी छिन्। त्यसपछि म इङ्ग्लिसमा आफ्नो स्पिच प्रस्तुत गर्नका लागि साजिद अली भाइ कक्षा 4बाट साजिद अलीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, respected guests, teachers, guardians and my brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this beautiful day, I am very happy to share few things with you on the topic of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear friends, the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a role model for every person in the world. Almighty Allah says in Holy Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." It means, indeed, in the Messenger of Allah, you have a good example to follow. Who hopes the meeting with Allah and the last day and remember Allah much. The world has seen a lot of scholars, philosophers, but none was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sent His messenger in every thread of His story to guide to humanity. The world has been waiting for the last prophet. The prophet was born and died in the month of Rabiul Awwal. He is an embodiment, mercy for all mankind. All prophets got the human, but Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought a revelation in the life of people and society. Our love for the prophet involves not only the devotion and passion for him, but to follow his deeds also. Dear audience, the Quran and Sunnah are the basis of our religion. If you want to get a success, we should follow the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Assalamu alaikum. जजाकल्लाह भाइ उनले इङ्ग्लिसमा आफ्नो स्पिच प्रस्तुत गरेर यहाँबाट बिदा भइसकेका छन्। त्यसपछि उर्दू स्पिचका लागि नाजिया खातुन कक्षा 8। नाजिया खातुन कक्षा 8।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशरिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह। मोहतरम सदर मजलिस, दूर दराज से आए हुए मेहमानान कराम कद्र, मुशफ़िक़े असातिज़ा कराम, मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और हाज़िरीन मजलिस, आज मैं आप लोगों के सामने इस पुररौनक बज़्म में जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने जा रही हूँ उसका उन्वान है माशरे में फहाशी का सैलाब, हलो ऐलाज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानी माशरे में आए दिन नई नई बुराइयां जन्म ले रही हैं। फसाद और बिगाड़ घटने और कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आला इंसानी कदरें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। फहाशी और बेहयाई का सैलाब खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। सकाफत और कल्चर के नाम पर मुनकरात और ख्वाहिश फैलाने वालों की समाज के बाद तबकों में खूब पजीराई हो रही है। हालांकि मजहब इस्लाम ऐसे लोगों को सामाजिक मुजरिम कर जानता है और कुरान मजीद भी ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाता है, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशरिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों की गिरोह में फहश फैले, वे दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब के मुस्तहिक हैं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ख्वाहिश के माना बेहयाई के होते हैं। यहाँ अल्लाह ने महज बेहयाई की असास की चाहत और मोहब्बत को इतना बड़ा जुर्म करार दिया है, तो जो लोग रातों दिन माशरे में अखबारात, रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों और ड्रामों के जरिए फहाशी और बेहयाई फैला रहे हैं, वह अल्लाह के यहाँ कितने बड़े मुजरिम होंगे। आज हमारे माशरे में मगरबी तहजीब को अपनाने की वजह से फहाशी और बेहयाई का सैलाब उमड़ पड़ा है। फहाशी के नस्र अशात के लिए जराए आम हो चुके हैं। मसलन टेलीविजन, सिनेमा, अखबारात और रसायल, नावल की किताबें, इंसदाद फहाशी के लिए किताब सुन्नत में वादे तालीमात मौजूद हैं, जिनसे उस सैलाब पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ औरतों, तुम अपने घरों में टिककर रहो, साबिक़ दौरे जाहिलियत की तरह सर धर न दिखाती फिरो। मेरी माँ और बहनों, औरत अगर घर से बाहर कदम रख सकती है तो जरूरी हवाइज और लड़ाइयों में जख्मियों की परम पट्टी के लिए, मगर हदीस मुबारका में आता है कि औरत जब घर से आरास्ताओं का रास्ता होकर निकलती है तो शैतान उसकी तरफ झांकता है और लोगों को बुराई की तरफ आमादा करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह इंसान का खुला दुश्मन है। लिहाजा औरत को चाहिए कि